हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स नोटबुक पर। और ये जो आपका पार्ट है इसमें हम देखने वाले हैं पार्ट सेकंड, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये वीडियो रहने वाली है, और जो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ हिंदी में। तो सिंपली आपने क्या करना है, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ चैनल कंपोजर, इस चैनल पर चले जाना है और आपको सारी वीडियोस हिंदी मीडियम के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, और जिन बच्चों ने हमारे ये चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट जाकर के सब्सक्राइब कर लो, और टॉपर्स नोटबुक चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि जो भी आने वाली वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को तुरंत मिले। तो पार्ट सेकंड है आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का, और लास्ट ही पार्ट है ये। इसके बाद आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है सिर्फ वही रह गए हैं, तो उनको भी हम जल्दी जल्दी आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पे अब जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाई डू वी सी अ रेनबो इन द स्काई ओनली आफ्टर रेनफॉल। तो इंद्रधनुष हम क्यों देखते हैं जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद। तो आंसर है वी सी आर रेनबो इन द स्काई ओनली आफ्टर रेनफॉल ड्यू टू डिवर्शंस dissipations हो जाएगा of sunlight by tiny water drops presence in the atmosphere. The water droplets act like a small prism. They reflect and disperse the incident sunlight, then reflect internally, and finally reflected it again when it comes out of the raindrop. And hence, due to dispersions of light and internal reflections, different colors reach the observer's eyes. Next है, why are the danger signals made red? Red color light has longest wavelength, therefore it is least scared by air molecules of smoke and fog particles. So the red color remains confined around the signals. Thus, the danger signals can be seen from very far off distances and are visible even through the smoke and fog. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई। और ये क्वेश्चन सारे ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, जो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए। एक्सप्लेन्स व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। Planets are much closer to the Earth and are seen as extended light source, so a planet may be considered as a collection of large number of point-sized light sources. Although light coming from individual point-sized sources flickers, but the total amount of light entering our eye from all the individual point-sized sources average out to be constant. Thereby, planets appear equally bright, and there is no twinkling of planets. Next question is, why does the sun appear reddish early in the morning? At the time of sunrise, the position of sun is very far away from us. The sunlight travels longer distance through the atmosphere of the earth before reaching our eyes. Since scattering of blue light is more than the scattering of red light, as a result of this, more red light reaches our eyes than any other color. Hence, sunrise appears red. तो नीचे आप डायग्राम देख रहे हैं, इसको भी आप बना दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपर हाइपरमेट्रोपिया is corrected. The near point of a hypermetropic eye is a 1 meter. What is the power of the lens required to correct this effect? Assume that the near point of the normal eye is 25 centimeter. तो पहले तो हम इसको कैसे सही कर सकते हैं वो देख लीजिए। अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम hypermetropia and can see distinct object clearly, but faces difficulty in seeing nearby object clearly. It happens because the eye lenses focus the incoming divergent rays beyond the retina. This defect of vision can be corrected by using a convex lens. और ये डायग्राम है आपका, फिगर जो आप देख रहे हैं। A convex lens with suitable power converges the incoming light in such a way that the is formed on the retina. The convex lens actually created a virtual image of a nearby object at the near point of vision of the person suffering for hypermetropia. The given person will be able to clearly see the object kept 25 सेंटीमीटर। बाकी न्यूमेरिकल है, आप यहाँ पे यू वी और एफ यू वी आपको गिवन है, एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपली आप फोकस का जो फॉर्मूला है लेंस के लिए, ठीक है, तो वो आपने यूज करना है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट जो देखना है, व्हाई डू वी सी अ रेनबो इन द स्काई ओनली आफ्टर रेनफॉल, इसका हमने देख लिया है। और अगला जो क्वेश्चन देखना है, व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बच्चों यहाँ से पढ़ पा रहे होंगे, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, व्हाई इज द कलर ऑफ द स्काई
सॉरी, वाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा है स्टेट होम्स लॉ, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ होम्स लॉ। तो पहले हम देख लेते हैं क्या है होम्स लॉ। इट स्टेट्स दैट इफ फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट then ratio of the potential differences across the conductor to the current passing through it remains constant। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला देखेंगे v ओवर आई इक्वल टू कांस्टेंट, और देखेंगे v अपॉन आई इक्वल टू हो जाता है r। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, एनी कंडक्टर विच ओबेज ओम्स लॉ इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। Joule's law heating effect, it states that the amount of heat produced in a conductor is first directly proportional to the square of electric current flowing through it, H proportional हो जाएगा I square। सेकेंड है directly proportional to the resistance R of the conductor, यानी हीट जो आपका हो जाएगा H proportional हो जाएगा R। नेक्स्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, एच प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो एच प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इसका जो आपका यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगा कैलोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो सिंपल से इसमें आपने जो लर्न करना है फॉर्मूला याद कर लो, बाकी जो आपकी थ्योरी लिखी हुई है इसको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो आप इसकी थ्योरी खुद से भी बना करके लिख सकते हैं। तो ये मैं आपको पूरा पेज शो कर दे रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट इजीली ले पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, एक्सप्लेन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखते हैं द रीजन around a current carrying conductor or a magnet in which their influence can be expressed is called their magnetic field. Intensity of magnetic field. The field intensity of a magnetic field at a given point is defined as the magnetic force acting upon the unit length of a conductor placed at the point perpendicular to field and carrying a unit current. It is a vector quantity and its unit is Newton per ampere meter। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है वो है व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वेयर डज इट यूज। आंसर है व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज डेवलप्ड अराउंड इट, द फिनोमेना is called magnetic effect of current. It is used in electric motor, electric bell, telephones, etc. Next question, when is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field largest। तो इसका आंसर देखते हैं द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज द लार्जेस्ट व्हेन कंडक्टर इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय, और आप देख रहे हैं एफ इक्वल टू हो जाएगा बी आई एल साइन थीटा। फोर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा। कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Next question, what is meant by electric dynamo? What are its main parts? Electric dynamo is a device that converts mechanical energy into electric energy. The main parts of an electric dynamo are as follow: field magnet, armature, and split rings. Next question है establish the formula for the force acting upon a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field। तो इसका पूरा सॉल्यूशन बच्चों मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये आप आराम से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा लेंथी है बट आप इसमें ये सिंपली याद क्या करेंगे एफ प्रोपोर्शनल होता है आई एल बी साइन थीटा ऑफ एफ इक्वल टू के आई एल बी साइन थीटा हो जाएगा। तो एफ इक्वल टू आपने लर्न क्या रखना है एफ बी आई एल साइन थीटा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन आपको दे देता हूँ स्क्रीनशॉट ताकि आप आराम से इसको प्रिपेयर कर पाए। बाकी पीडीएफ भी जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है व्हाट इज एसिड रेन, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं on burning fossil fuels, the oxides of carbon, nitrogen, carbon, common nitrogen, and sulfur are released, which are acidic oxide. These lead to acid rain. Harmful effect of acid rain. First is acid rain will affect the human's body and causes cancer and other dangerous diseases. Second, it also affects the life of plants and animals very badly. Third, acid rain also increases the acidity of soil and fresh water.
नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं जो है, व्हाट आर द प्लानिंग इन इंडिया फॉर द यूजेस ऑफ विंड एनर्जी। तो इसका आंसर देख लीजिए आप, या पूरा आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको, क्योंकि थ्योरी है इसमें, हमने सिर्फ थ्योरी, आप ये कुछ क्वेश्चन का आंसर खुद से भी बना करके इजीली लिख सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज ओटीईसी पावर प्लांट, एक्सप्लेन हाउ द प्लांट वर्क्स। इसका आंसर देखते हैं। द पावर प्लांट यूज्ड टू कन्वर्ट ओशियन थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड ओटीईसी पावर प्लांट। In an OTEC power plant, the warm surface water is used to boil a volatile liquid like ammonia. The vapors of the liquid are then used to run the turbine of a generator. Next question is, write any four advantages of recycling of waste. First is, it reduces the bulk or total volume of waste to be disposed. Second is, it reduces the need to exploit new supplies of our resources, therefore help is conservation of our resource. Next, energy requirements are low in recycling than the fresh productions. Fourth is, there is less pollution if the material is biodegradable. It may becomes it may becomes a resource like बायोगैस एंड मैन्योर। नेक्स्ट आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें आपको बताना है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के बीच में डिफरेंस शो करना है। तो आपको यहाँ टोटल कितने 3 पॉइंट्स देखने को मिले हैं, इन तीनों पॉइंट्स को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फर्स्ट हम देखते हैं, दीज आर ग्रीन प्लांट्स विच कन्वर्ट द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन इनटू द केमिकल एनर्जी ऑफ द फूड। और अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें, कंज्यूमर्स एज द नेम इंडिकेटर्स कंज्यूम द फूड प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स आइदर डायरेक्टली टू और इनडायरेक्टली। नेक्स्ट प्रोड्यूसर्स में देखेंगे तो दियर न्यूट्रिशंस इज एट autotrophic and their nutrition is heterotrophic. नेक्स्ट है प्रोड्यूसर्स फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ अ फूड चेन, और इधर हम देखेंगे कंज्यूमर्स फ्रॉम कंज्यूमर फ्रॉम सेकेंड और थर्ड और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल ऑफ अ फूड चेन। नेक्स्ट, व्हाई it is important for all the countries of the world to work together to reduce the emissions of ozone depleting substances। आंसर देखते हैं। Ozone shield present in stratosphere protect all living organisms of the earth including human being from the damaging effects of ultraviolet rays. The ozone shield is adversely affected by ozone depleting chemicals especially chlorofluorocarbons। एक मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन जाता है CFC की फुल फॉर्म लिखने के लिए, तो याद रखना क्लोरोफ्लोरोकार्बन। Whether a country X produced CFC or the country Y, it does not matter if CFC are released into the atmosphere, there will be depletions of ozone layer. It will affect all the inhabitants of the earth. Therefore, joint efforts by governments of all the countries of the world are assessment to deal with the issue of the utmost importance। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, what are the decomposers, what will be the consequence of their absence in an ecosystem। तो ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में भी आपको देखने को मिलेगा, तो इसको आप यहाँ पर भी पूरा अच्छे से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक करके आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपको प्रिपेयर करना है, व्हाट इज फॉसिल फ्यूल, गिव टू एग्जांपल्स। तो इसका आंसर देख लेते हैं। फ्यूल दैट वाज फॉर्म्ड बाय बर्निंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स डीप अंडर अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो is called fossil fuel. These plants and animals of remote past converted into fossil fuel under high pressure and temperature. Coal and petroleum are the two common examples of fossil fuel. Next, important forest product. First, pulp of many forest plants is used in a paper industry. Next, plywood industry is based on forest wood. Next, catechu, 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 कट्टा, काटा। अब ये कैसे प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं कि कैसा हो रहा है, जैसा आप देख पा रहे हैं, काटा इज अ प्रीसियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट। फोर्थ है रबर लेटेक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रबर प्लांट्स। फिफ्थ है टेंडो लीव्स आर यूज्ड फॉर बीड़ी मेकिंग। और सिक्स है टेम्बर इंडस्ट्री, टेम्बर इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट और
ऑन वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के बारे में आप ये खुद भी बना करके पूरा लिख सकते हैं, बट आप चाहें तो यहाँ से पूरा इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्राइब गंगा क्लीनिंग प्रोजेक्ट। तो और इसमें और आप देख रहे हैं इसी के अंदर आपके और क्या क्या है, इन विच ईयर गंगा क्लीनिंग प्रोजेक्ट स्टार्टेड, फिर व्हाट इज गंगा क्लीनिंग प्रोजेक्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। तो फर्स्ट और थर्ड वाले का देख लेते हैं। इसमें देखो सिर्फ मेन जो आपने याद रखना है वो है एक तो ये देखना है गंगा क्लीनिंग प्रोजेक्ट क्या है, एक बार इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। पूरी थ्योरी है, देखो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं जो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एक आप इसको पढ़ लीजिए, और एक लास्ट में आप देख रहे हैं कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया is a class of bacteria which is found in intestine of human being. Presence of the bacteria in water indicates that this water is contaminated by human feces. It is measured as most probable numbers ambient in 100 ml of water. तो इसी के साथ आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे वो हो चुके हैं कंप्लीट। आई होप कि आपने दोनों पार्ट अच्छे से देख लिए होंगे और दोनों पार्ट्स के क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। और लगभग ये समझ के चलो आपका 90% क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और अच्छे से तैयारी करते रहिए। अभी बहुत जल्द आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहे, और जिन्होंने अब तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है फटाफट जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी आने वाली वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आपको देखने को तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।